Good morning, student, and welcome to Sri Eknathrav Kharse Talent School, Muktai Nagar online tutorial. I am Sachin Patil, your computer 2 teacher, and today we are going to learn chapter 4, that is formatting in MS Word. In this chapter, we are going to learn formatting features, font, align, aligning text, changing text, borders and shading. These 5 topics that we are going to learn in this chapter. See, what is formatting? Here, see, formatting. Formatting is a general arrangement of text in a document. General arrangement. Formatting means it is the general arrangement. What general arrangement we can do? Means we can change the appearance of the text. We can change the appearance of the text and we can put data into a specific layout or arrangement. That is called formatting. Means we can change the text of the document, we can change the color of the document, we can increase the size of the document, size of the text. So that is called formatting. We can give the space from left side, right side, top side, bottom side. That arrangement is called as a formatting. So that formatting features we can do in this chapter. How we can do that we can see in the practical. Now see, formatting is done to improve the appearance of documents, and the formatting features in MS Word are available under Home tab. कौन से टैब के अंडर में आता है वो? होम टैब के. होम टैब के अंडर में फॉन्ट ग्रुप आता है, पैराग्राफ ग्रुप आता है. व्हाट इज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग is the general appearance of the document. Means we can put data into a specific layout or arrangement. What is formatting? Formatting is the general appearance of the document. Means we can put the data into a specific layout or arrangement. In the format group, format group, we can find under the होम टैब. कौन से टैब के अंडर में हम लोग फाइंड आउट करते हैं? होम टैब के अंडर में. होम टैब के अंडर में हम लोग फॉर्मेट ग्रुप फाइंड करते हैं. होम टैब के अंडर में हमें फॉन्ट ग्रुप फाइंड आउट होता है. अगेन हमें पैराग्राफ ग्रुप फाइंड होता है. उसमें हमें सारे फॉर्मेट ग्रुप मिलते हैं. किसके अंडर में? होम टैब के अंडर में. होम टैब के अंडर में हमें फॉन्ट ग्रुप मिलता है और पैराग्राफ ग्रुप मिलता है. सो दिस थिंग्स वी कैन फाइंड अंडर द formatting. Now let us
let us do the practical. Okay, see, first we start all programs. We go in the Office Microsoft Office 2013. We can click on the Word 2013. In this way the file is open in front of you. Okay, this is the screen of Word document. Here file, home tab, insert tab, design tab, page layout, all tab are here. We have to go in the home tab. हमें home tab में जाना है. home tab में हमें क्या क्या मिलता है? फॉन्ट ग्रुप मिलता है, पैराग्राफ ग्रुप मिलता है. आया समझ में? हमें ये सब होम टैब के अंडर में मिलता है. So यहाँ पे what we can do here, here is the font group and paragraph group. Now next point we can see. What is the next point? See here, have you seen here? What is here? Before formatting and after formatting. Before formatting and after formatting. See, here, I love my country. I love my country. This line, ये लाइन मैंने यहाँ पे टाइप की. This line I have type here. I am typing here. Now, this is the without formatting text. This line is without formatting, means before formatting. If now the same line I type here, I love my country. Correct? Now I am formatting this line. So what I am doing, I am selecting this text first. मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा. अभी मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा. ओके, हियर व्हाट वी डू नाउ, आई एम चेंजिंग हिज अपीयरेंस. सो हैव यू सीन द डिफरेंस? ये डिफरेंस आपको दिखाई दिया? दिस इज बिफोर फॉर्मेटिंग and this text is after formatting. This is called formatting. इसे फॉर्मेटिंग कहते हैं. फॉर्मेट करना मतलब कलर चेंज करना, अपीयरेंस चेंज करना, उसकी साइज कम ज़्यादा करना, उसकी साइज कम ज़्यादा करना, साइज कम ज़्यादा करना, ऐसे. दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. अंडरस्टैंड? दिस इज आफ्टर formatting. Now see, what is font? Next topic is font. Font is a style of writing and typing. Font is a style of writing and typing. Many fonts are available in MS Word. Font provides specific textual appearance to the document. You can change the size, style of, give various effect to the font. Just like this. Font. A font is a style of writing and typing. Font provides textual appearance options to the document. You can change the size, style, or give various effects to a font. Arial, Times New Roman, Comic Sans MS, etc. are a few examples of popular fonts. The steps to change the font type are: select the text which you want to format. Click the Home tab. Click on the drop-down arrow next to the font box in the font group. Select the relevant font type from the font list box. The selected font type will be applied to the selected text.
So in this way we can change the appearance of the font. Understand? Now see, changing the font type. Here are some examples and the steps are here. Select the text you want to format. What is the, see, I will show you. Changing font size and type. What is the steps? See, now okay. Now see the first step. What is the first step? Select the text which you want to change the appearance. Okay. Second, click the home tab. Third step, click the font type which you want to change and select the size. Okay, these are the 3 steps you have to check. Now let us do the practical. See, first select the text, click on the home tab, go in the font, select different font. As we are selecting the different font, in this way. If we are selecting a different font, the font type will be changed here. We can again increase or decrease the font size in this way. You can change the different font in this way. So these are the steps to change the font size and font type. Understand? Now the next topic is changing the font color. How we can change the font color? See how we can change the font color. Changing the font color. What is the step? Select the text which you want to change the color. Select first step. What is the first step? Select the text which you want to change the color. Then second step, click on the home tab. Third step, click the font group. Click on the font group which you want to change now, and which you want to change the color. Change the color. See, these are the 3 steps you have to follow. Select the text, change the color, click on the home tab and click on the font group. Okay, these are the 4. Let us do the practical now. Here how we can do? First, select the text. How we can select? By just clicking on the first word, with the left mouse click button and press the mouse button up to which you have to select. मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखो और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करो. इसे कहते हैं सिलेक्शन. Select the text, click on home tab, go in the font
font group, and click on the color. You can select the different color. In this way you can change the color. Again, if you want to change the different color, you can choose different color. You can choose green color in this way. So in this way we can change the color of the font. Understand? Now next, applying bold, italic and underline effect. Bold, italic and underline effect. Well, bold means what? You can make your text as a very big. Italics means a slant, and underline means give the underline to the word. This is the shortcut keys. What is the shortcut keys? First, what is the step? First, select the text, go in the home tab, click in the font group, click on, this is the bold button, Control B. If you are pressing Control B, see, have you seen the change? The text in the bold. The text in the bold. Understand? Now, if you click on the italic, Control I, the text in the slant. The text appear in the slant. Okay? This is bold in color. This is bold. How we can do? Shortcut key कौन सी? कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए. इटैलिक के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस आई. कंट्रोल प्लस आई. तो इस तरह से आपको दिखाई देगा. बराबर. अभी यही आपको इसको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन दे सकते हो. अंडरलाइन के लिए ये देखो अंडरलाइन आ गई. तो अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू बटन दबाना है. सो बोल्ड के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस बी. इटैलिक के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस आई. और अंडरलाइन के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस यू. कंट्रोल प्लस यू दबाने से आपका टेक्स्ट ऐसे दिखाई देगा. कंट्रोल प्लस आई दबाने से आपका टेक्स्ट ऐसे दिखाई देगा. कंट्रोल प्लस बी दबाने से आपका टेक्स्ट ऐसे दिखाई देगा. सो these are the control bold, italic and underline. Now next topic. See what is the next topic? Highlight the text. अभी आप आपके टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करेंगे? हाईलाइट हम लोग हाईलाइट क्यों करते हैं टेक्स्ट को? टू कैच द रीडर्स अटेंशन टू द टेक्स्ट. टू कैच द रीडर्स अटेंशन हम लोग क्या करते हैं? हाईलाइट द टेक्स्ट. हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट क्यों करते हैं? टेक्स्ट हाईलाइट हम लोग why we can highlight the text. Why we can highlight the text? इसका जवाब क्या है? देखिए. Why we can highlight the text? हम लोग हाईलाइट क्यों करते हैं? इसका आंसर है बिकॉज we have to get the reader's attention. Because we have to get the reader's attention. मतलब जो पढ़ने वाला है उसका अटेंशन हमें
लेना है अटेंशन टूवर्ड्स अस। जो हम लोगों ने 10 लाइन टाइप की है उसमें से अगर एक टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम लोग हाईलाइट टेक्स्ट यूज करते हैं। तो व्हाई वी कैन हाईलाइट द टेक्स्ट, बिकॉज वी हैव टू गेट द रीडर्स अटेंशन टूवर्ड अस। सो व्हाट इज द स्टेप्स, उसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू want to highlight। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। सेकेंड, क्लिक ऑन द होम टैब। थर्ड स्टेप क्या है? देन क्लिक ऑन द फॉन्ट group and select the color which you have to apply on the text। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आए ध्यान में? लेट अस डू द प्रैक्टिकल नाउ। सी, अभी आई लव माई कंट्री, ये मैंने टाइप किया हुआ है। देन माई कंट्री नेम इज इंडिया, आई स्टडी इन क्लास 4। अभी ये 3 लाइन्स है। ये 3 लाइन्स में से मुझे बीच वाली लाइंस को हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, बीच वाली लाइंस को मैंने मिडल वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे क्लिक करूँगा, फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर उसको बैकग्राउंड में कलर दूंगा। तो बैकग्राउंड में जैसे ही मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ तो वो टेक्स्ट क्या हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है। उसको बैक साइड में कलर बॉक्स आ जाता है। उसके बैक साइड में क्या आ जाता है, कलर बॉक्स। इन दिस वे वी कैन हाईलाइट द टेक्स्ट। अभी हम लोगों का डायरेक्ट अटेंशन कहाँ पर जा रहा है, कलर टेक्स्ट पर। हमारा अटेंशन कहाँ पर जा रहा है, कलर टेक्स्ट पर। सो दिस इज कॉल्ड रीडर्स अटेंशन। दैट्स व्हाई वी कैन यूज द हाईलाइट द टेक्स्ट। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, रिमूविंग हाईलाइट कलर। अभी वो हाईलाइट कलर अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए। फिर से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उसी इसमें जाओ और नो कलर होता है उस पर क्लिक करो। नो कलर पे क्लिक करने के बाद पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, बैकग्राउंड पे जाओ, नो कलर पे सिलेक्ट किया, वो कलर डिसेबल हो गया। इन दिस वे वी कैन रिमूव द हाईलाइट। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, aligning the text। aligning the text now aligning the text means align a text is the way in which it is placed between the margins of page। मतलब हम लोग हमारे टेक्स्ट को एक पेज के मार्जिन में रखते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सेंटर में और जस्टिफाई। अलाइनिंग द टेक्स्ट कितने टाइप की अलाइनिंग होती है, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई। कितने टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई। ओके, सी how we can do the alignment. See, select the text, click on the home tab, in the paragraph group select the desired alignment option. This is called alignment. Now see how we can do the alignment.
Here I can type 4 to 5 lines. My name is Sachin. I like computer subject. Here I am typing 5 lines. Correct? Now these 5 lines I have to align. अलाइन मीन्स पेज को अलाइन करना. अलाइन करना मतलब लेफ्ट साइड से अलाइन करना, राइट साइड से अलाइन करना, टॉप से अलाइन करना, बॉटम से अलाइन करना, मतलब उसका स्पेस एडजस्ट करना. उसे कहते हैं अलाइनमेंट. सी नाउ अभी ये जो 5 लाइन्स है इसको मुझे अलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होम टैब पे क्लिक करूँगा, पैराग्राफ ग्रुप में जाऊँगा. यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल. सेकेंड है सेंटर, कंट्रोल ई. थर्ड है अलाइन राइट, कंट्रोल आर. एंड जस्टिफाई, कंट्रोल जे. फर्स्ट वी सी लेफ्ट अलाइनमेंट. इट इज़ ऑलरेडी इन लेफ्ट अलाइनमेंट. बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है. अभी हम लोग सेंटर पे क्लिक करेंगे. सेंटर पे क्लिक किया, क्या हुआ, सारी टेक्स्ट सेंटर में आ गई. कहाँ पर आ गई, सेंटर में. दिस इज कॉल्ड सेंटर अलाइनमेंट. सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई. कंट्रोल ई बटन दबाने से ये हो जाता है, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद. इसे कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट. ओके. अभी हम लोग क्लिक करेंगे राइट अलाइनमेंट. कहाँ पर है, होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ पर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर. कंट्रोल आर दबाने से हम लोग राइट साइड में आ गए. देखा आपने, हम लोग कहाँ पर आ गए, राइट साइड में. इन दिस वे वी कैन अलाइन द टेक्स्ट. इसे कहते हैं अलाइनमेंट. और चौथा टाइप है जस्टिफाई. जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है, इट जस्ट फिट द टेक्स्ट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. लेफ्ट और राइट मार्जिन में उसको फिट करता है, उसे कहते हैं जस्टिफाई. इसे कहते हैं अलाइनमेंट करना. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं. लाइन स्पेसिंग के लिए क्या स्टेप है, सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब, इन द पैराग्राफ ग्रुप, लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग. दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग मतलब दो टेक्स्ट के बीच में लाइन देना. अभी यहाँ पर ये इन दो टेक्स्ट के बीच में मुझे स्पेस कम ज़्यादा करनी है, तो मैं कहाँ से करूँगा, लाइन स्पेसिंग के. फिर मैं होम टैब पे क्लिक करूँगा, फिर पैराग्राफ ग्रुप में जाऊँगा. पैराग्राफ ग्रुप में जाने के बाद होम टैब पर होम टैब पे क्लिक करूँगा, फिर पैराग्राफ ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करूँगा. यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो कितना स्पेस हमें छोड़ना है लाइंस के बीच में, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. ये देखिए, अभी ये दो लाइन के बीच में कितना स्पेस आ गया, ये दो लाइन के बीच में इतना स्पेस आ गया. इसको कम करना है तो कम कर सकते हैं, इसको बढ़ाना है तो हम लोग दो लाइन के बीच में ये स्पेस बढ़ जाएगा. ये देखो, दो लाइन के बीच में ये स्पेस हम लोग बढ़ा सकते हैं. ये स्पेस हमें रिमूव करना है तो हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं. ये रिमूव बटन है, हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं. तो दो लाइन के बीच वाला सारा स्पेस निकल गया. इन दिस वे आवर टेक्स्ट विल बी अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आया समझ में. तो दो सेंटेंस के बीच में स्पेस डालने के लिए हम लोग ऐसे डाल सकते हैं, इसको ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहे उसको इंक्रीज कर सकते हैं. आया समझ में.
हमें स्पेस नहीं चाहिए दो लाइन के बीच में, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग केस। चेंजिंग केस क्या होता है? सी, चेंजिंग केस मतलब सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, देन टाइटल केस और टॉगल केस। ये 5 चेंजिंग केस होते हैं। कितने? 5 चेंजिंग केस होते हैं। पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या करता है? फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस इज इन अपर केस एंड रेस्ट आर इन लोअर केस। देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर कहाँ पर हमें मिलेगा? ये पूरा टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, मैंने होम टैब पे क्लिक किया, पैराग्राफ ग्रुप में गया, फंड ग्रुप में गया, यहाँ पर और यहाँ पर चेंजिंग केस, यहाँ पर चेंजिंग केस दिखाई दे रहा है। कितने टाइप है? 1 2 3 4 5। 5 चेंजिंग केस टाइप है। कितने? 5। पहला कौन सा है? सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस क्या करता है? टेक आपका जो सेंटेंस है उसका पहला लेटर कैपिटल में रखता है और बाकी सारे लेटर वो स्मॉल लेटर में कर देता है। पहला लेटर कैपिटल में, सेंटेंस का पहला लेटर, पहला अक्षर वो कैपिटल में करता है और बाकी सारे स्मॉल लेटर में कर देता है। देखिए इसने, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने क्या किए? पहला लेटर उसने कैपिटल में किया। फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस इन द अपर केस एंड द रेस्ट आर इन द लोअर केस। बाकी सबको वो क्या कर देता है? लोअर केस में कर देता है। ये सिलेक्ट किया सेंटेंस केस, तो बाकी सब लोअर इसमें आ जाते हैं। In this way, so in this way we can change. अभी दूसरा टाइप कौन सा है? लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है कि सारे जो अक्षर है, सारे लेटर्स लोअर केस में आ जाते हैं, इन द लोअर केस। दिखाई दिया? अभी यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग लोअर केस, ये देखिए सारे लेटर लोअर केस में आ गए। कोई भी लेटर कैपिटल लेटर में नहीं दिखाई दे रहा है। आया ध्यान में? नाउ अभी तीसरा टाइप कौन सा है? थर्ड टाइप अपर केस। हम लोग अभी इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको अपर केस में डालेंगे। ये देखो, ये सेंटेंस के सारे लेटर अपर केस में आ गए, कैपिटल लेटर में आ गए। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में आ गए। अभी सेकेंड लाइन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसको अपर केस यूज करेंगे। ये देखो सेकेंड लाइन भी अपर केस में आ गई, मतलब कैपिटल लेटर में आ गई। आए ध्यान में? अभी हम लोग सारे के सारे सिलेक्ट करेंगे, अपर केस में करेंगे, तो सब लाइंस अपर केस में आ गई। अंडरस्टैंड? अभी सभी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये चौथा टाइप है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है और बाकी स्मॉल में आता है। हर एक ईच वर्ड फर्स्ट लेटर इन कैपिटल एंड
अदर लेटर इन स्मॉल। सी आया ध्यान में? अभी ये वर्ड का कैपिटल आ गया, ये वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आया, बाकी स्मॉल में हो गया। दिस वर्ड फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, वाई इज स्मॉल। दिस वर्ड C is capital and other are small. So this is called capital each word. अभी पांचवा टाइप कौन सा है देखो, टॉगल केस। टॉगल केस मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल में आएगा और बाकी लेटर कैपिटल में आएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा और बाकी स्मॉल में आएगा और बाकी कैपिटल में। ये देखिए दिखाई दिया, फर्स्ट लेटर स्मॉल में बाकी कैपिटल में, फर्स्ट लेटर स्मॉल में बाकी कैपिटल में, फर्स्ट लेटर स्मॉल में बाकी कैपिटल में। दिस इज कॉल्ड टॉगल केस। इसे क्या कहते हैं? टॉगल केस। आए ध्यान में? तो दिस टॉपिक चेंजिंग द केस, ये समझ में आया सबको? वेरी गुड। Now border and shading. What is border and shading? See. Borders and shading. You can apply different types of borders and colors to your text. Borders and shading options places lines around a specified text. It may be used to set the background color or pattern that fills background of the particular text. Following are the steps to apply borders and shading. Select the text. Click on the Home tab. In the paragraph group, click on the drop-down arrow next to the Borders button. Select the Borders and Shading option from the list. The Borders and Shading dialog box will appear. Under the Settings section, select the box option. Under the Style section, select the type of line you want. From the Color section, select the color you want. Select the width of the line from the Width drop-down menu. Under the Apply to section, click on the drop-down arrow and select the required option. Click on OK. So, border and shading मतलब क्या? जिस टेक्स्ट को, जिस पैराग्राफ को आपको बॉर्डर देना है, उसको कलर देना है, तो उसे कहते हैं बॉर्डर देना, मतलब बॉक्स बनाना, और शेडिंग मतलब कलर देना। आया समझ में? तो उसको कैसे करना है, उसके स्टेप्स हम लोगों को दिए गए हैं। सिलेक्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट एंड द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर। अंडर द सेटिंग, सिलेक्ट द बॉक्स ऑप्शन। अंडर द स्टाइल, सिलेक्ट द type of you want, and from the color section, select the color you want and select the width from the width. Okay, these are the 6 steps we have to follow. See, let us do the practical. कैसे करना है? अभी देखिए यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करवा देता हूँ। फिर होम टैब पर क्लिक करने के बाद पैराग्राफ में यहाँ पर बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे मैं क्लिक करूँगा। बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर्स और शेडिंग सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैंने बॉक्स पे क्लिक किया। मैंने किस तरह की स्टाइल चाहिए मुझे, डॉटेड लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, मैंने डबल लाइन सिलेक्ट की। फिर कलर, कौन सा कलर चाहिए मुझे, वो कलर मैंने सिलेक्ट किया। विड्थ कौन सी चाहिए, कितनी मोटी वो बॉर्डर चाहिए, उसकी जाड़ी कितनी चाहिए बॉर्डर की, वो मैंने सिलेक्ट की। पैराग्राफ को चाहिए या टेक्स्ट को चाहिए, तो ये टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। और पैराग्राफ मतलब पूरा पैराग्राफ आएगा, ओके किया। तो ये देखो, दिस इज़ कॉल्ड बॉर्डर एंड शेडिंग। मतलब इस पैराग्राफ को ये बॉर्डर आ गया, ये कलर आ गया। आया समझ में? इन दिस वे वी कैन अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग। कहाँ से अप्लाई करते हैं हम लोग? टेक्स्ट को सिलेक्ट, पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, होम टैब पर क्लिक किया, पैराग्राफ पे क्लिक किया, यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग है, इसमें बॉक्स पे क्लिक किया। कौन सा बॉक्स चाहिए, डॉटेड चाहिए, डबल लाइन चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, वो सिलेक्ट किया। कलर
सिलेक्ट किया, रेड कलर सिलेक्ट किया, कितना जाड़ा चाहिए वो उतना जाड़ा चाहिए या बारीक चाहिए उतना हम लोगों ने सिलेक्ट किया और पैराग्राफ ओके किया। इस तरह से हम लोग अलग अलग बॉर्डर हमारे पैराग्राफ को अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। This is the end of this chapter. Thank you, student. Now in this chapter what we have learned, formatting is done to make the text more attractive. A font is a style of writing or typing. Font style can be make particular word or text thicker, border, slanting and underline to differentiate the rest of the text. Different alignment options position text within the margin in the different ways. We can apply different types of borders and shading to the text. हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी। हाँ, थैंक यू स्टूडेंट।